Hello students, welcome to all in this class of social science once again. Dear students, in previous module I have told you about the importance of transport for a place or a nation. Today in this module we will discuss about the modes of transportation and communication. So let's first discuss about the modes of transportation. Dear students, there are 5 main modes of transportation. These are roadways, railways, waterways, airways and pipelines. Let's now first discuss about roadways. Roadways is used for the movement of people and goods for shorter distances. It is the easy and efficient means of transport which provide door-to-door services. Road transport helps in the transportation of perishable items like fruits and vegetables to distant market fastly. So बेटा रोडवेज का यूज़ दोनों ही पर्पस पीपल एंड गुड्स के शॉर्टर डिस्टेंसेस के मूवमेंट के लिए किया जाता है. यानी अगर थोड़ी दूर जाना हो तो रोडवेज आर चीपर एज कंपेयर टू रेलवेज एंड एयरवेज. बेटा रोडवेज ट्रांसपोर्ट का इजी और ये कह सकते हैं एफिशिएंट यानी आसान और कुशल साधन है जो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सपोज हमने एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है तो हम कार, जीप, ऑटो की हेल्प से वहाँ जाते हैं यानी रोडवेज के थ्रू जाते हैं. रेलवेज हमारे घर तक नहीं पहुँच सकती जबकि कार अपने घर तक ईजिली पहुँच सकती हैं. सो वी कैन से रोडवेज आर द easy means of transport and provide door-to-door services. रोड ट्रांसपोर्ट बेटा पेरिशेबल आइटम्स यानी जल्दी खराब होने वाली गुड्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को फास्टली मार्केट तक पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं. Dear students, the construction and maintenance of road is cheaper than other means of transport. Transport play an important role in hilly areas because it is easy to construct road in these areas than other means of transport like railways. The students, a well-developed road transport system reduces the social, political and economic distances among the people of different regions and culture. बेटा रोड्स की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरेटिवली सस्ता है यानी सड़कों का निर्माण और उसका रख रखाव दूसरे परिवहन के साधनों के कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है. हिली एरियाज़ में भी रोड ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है जबकि रेलवे लाइंस को वहाँ बनाना बहुत कॉस्टली पड़ता है. एक वेल डेवलप्ड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफरेंट लोगों के बीच सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक डिस्टेंस को भी कम करता है. द स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द रेलवेज. रेलवेज आर आल्सो नोन एज द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री. इट हेल्प्स इन मूविंग ऑफ बल्की गुड्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर ग्रेटर डिस्टेंसेस. Railways are comparatively fast means of transport. It brings people closer to each other. The students, it is very much difficult to travel long distances to roads. So railways provide the most comfortable and less expensive means of transport. So railways को बेटा कंट्री की लाइफलाइंस भी कहा जाता है यानी देश की जीवन रेखा. रेलवेज का यूज़ हैवी गुड्स और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए किया जाता है. रेलवेज लोगों को एक दूसरे के क्लोज लाती हैं. लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए रोडवेज से ट्रेवल करना डिफ़िकल्ट होता है, इजी नहीं होता. सो रेलवेज लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए कंफर्टेबल और लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. आई मीन टू से रेलवेज आरामदायक हैं और कम खर्चीली होती हैं एज कंपेयर टू रोडवेज फॉर
longer distances especially. Dear students, in earlier time the trains run with coal engines. Now almost all trains are run by diesel and electrical engines. The electrification of railways has not only reduced the pollution but also enhanced the speed of railways. Due to advancement of technology, fast moving trains like Rajdhani and Shatabdi Express has been introduced. For shorter distances, metro railways have introduced in the cities like Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bengaluru and Jaipur. ट्रेन्स को बेटा पहले कोयले के इंजन से चलाया जाता था, बट अब ट्रेन्स डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन्स के थ्रू चलने लगी हैं। इलेक्ट्रीफाइड रेलवेज से न सिर्फ पोल्यूशन रिड्यूस हुआ है, इवन रेलवेज की स्पीड भी काफ़ी बढ़ी है। और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से जो फास्ट स्पीड से चलने वाली यानी तेज गति से चलने वाली ट्रेन्स लाइक राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई, जो कंट्री की प्रोग्रेस में काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। और शॉर्टर डिस्टेंसेस और लोकल एरियाज़ के लिए कई सिटीज़ में मेट्रो रेलवेज भी शुरू की गई हैं, जैसे कोलकाता में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर और चेन्नई में मेट्रोस काफ़ी पॉपुलर हैं। Dear students, let's now discuss about the waterways. Waterways is the cheapest and eco-friendly mode of transport. It helps in moving the heavy and bulky goods. Waterways are very beneficial for those countries or places which are located on the coast or near the river banks or navigable canals. Nowadays, with the help of mechanized ships equipped with modern facilities, are helpful in transporting the perishable materials over long distances. Water transport carries the goods and passengers in a very large number from one country to another. The vast mechanized ships with all facilities are known as floating towns. यू नो बेटा, वाटरवेज एक चीपेस्ट और इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये स्पेशली हैवी और बल्कि गुड्स के लिए चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटरवेज उन कंट्रीज और प्लेसेस के लिए बेनिफिशियल है जो नदी के किनारे पर स्थित है या कोस्टल एरिया के पास है। आजकल बिग एंड मैकेनाइज्ड शिप्स में सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये शिप्स काफ़ी संख्या में लोगों को और गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ईजिली ले जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग टाउन्स भी कहा जाता है, क्योंकि हजारों यात्री इकट्ठे एक ही टाइम में इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द एयरवेज। इट इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज आर expensive. It has reduced the distances and converted the whole world into a global village. The students, this means of transport is very suitable for those areas where railways and roadways cannot be constructed. With the help of, we can easily cross the dreary deserts, vast oceans and dense forest very easily. So बेटा, एयरवेज लेटेस्ट और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरवेज कॉस्टली है, यानी महंगा है। एयरवेज ने एक तरह से डिस्टेंसेस को काफ़ी रिड्यूस किया है और पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। एयर ट्रांसपोर्ट उन एरियाज़ के लिए भी सूटेबल है जहाँ रेलवेज और रोडवेज को ईजिली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ हाई माउंटेन्स हैं। एयरवेज की हेल्प से हम सूखे जो डेजर्ट एरिया है और वास्ट ओशंस को और डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस द अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज पाइपलाइंस। द स्टूडेंट्स, it is the most recent mode of
transport. It helps in the transportation of liquid and gaseous materials like mineral oil, water, and natural gas. Solid in the form of slurry can also be transported through pipelines over very long distances. Hazira Bijapur Jagdishpur gas pipeline is an important example of pipelines, यानी HBJ pipelines. Natural gas is transported to Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh through this pipeline. So बेटा pipelines जो है ट्रांसपोर्ट का सबसे रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी ये वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज के बाद बनाया गया है. सो मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज पाइपलाइन. पाइपलाइंस का यूज लिक्विड और गैसेस मटेरियल के लिए किया जाता है, जैसे मिनरल ऑयल, वाटर और नेचुरल गैस एटसेट्रा. पाइपलाइंस के थ्रू सॉलिड्स को भी स्लरी फॉर्म में, यू कैन से लिक्विड फॉर्म में चेंज करके पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, सीमेंट एटसेट्रा. HBJ पाइपलाइन यानी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ये पाइपलाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन. Communication means exchange of ideas and views from one person to another. Communication is of two types: personal communication and mass communication. Communication network is very important in exchanging the knowledge and ideas, which helps in the economic development of a nation. It also helps in developing social relationship and unity. An efficient communication is very helpful during natural calamity like floods, droughts, etc. The means of instant communication such as TV and radio, flash news, so that relief can be provided to the spot immediately. So बेटा communication का मतलब different ideas और views का exchange, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यानी विचारों का आदान प्रदान. कम्युनिकेशन दो टाइप से हो सकता है, पर्सनल भी यानी व्यक्तिगत भी, और मास कम्युनिकेशन मीन्स सामूहिक स्तर पर भी. कम्युनिकेशन नेटवर्क नॉलेज और आइडियाज़ एक्सचेंज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल है. हम फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट के थ्रू ईजिली बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं. इवन ये सोशल रिलेशनशिप और यूनिटी को डेवलप करने में भी हेल्पफुल है, मददगार है. प्राकृतिक आपदाओं के लिए के टाइम जैसे फ्लड, ड्रॉट यानी सूखा आदि में एक एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है. इंस्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी तात्कालिक संचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो, फ्लैश न्यूज़ आदि, जो राहत के टाइम यानी तुरंत मौके पर उसको पहुंचाया जा सके. सो दीज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Dear students, in ancient time, pigeons were used to send messages to different places. Then services like post and telegraph, newspaper, magazines, radio, television, telephones developed. In modern time, satellite technology has made communication the most powerful medium. Through this, TV services in remote areas has become possible. Computer technology is another great invention by the man. It has revolutionized the process of communication through email, internet, CD, pen drive, laptop and palm top, etc. With the help of information and communication technology, we can get information about the whole world by sitting in a corner or room with the help of laptop or computer. So बेटा एंशिएंट टाइम में
यानी पुराने टाइम में डिफरेंट प्लेसेस पर मैसेजेस सेंड करने के लिए पिजन्स यानी कबूतरों का यूज़ किया जाता था। उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, फोन्स डेवलप हुए और आज मॉडर्न टाइम में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सबसे मॉडर्न और पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट्स के थ्रू रिमोट एरियाज में भी टीवी सर्विसेज पॉसिबल हुई हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी जो मैन के थ्रू यानी मनुष्य द्वारा की गई एक ग्रेट इन्वेंशन है। इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू ईमेल, इंटरनेट, सीडीज, पेन ड्राइव, लैपटॉप, पामटॉप एटसेट्रा के थ्रू कम्युनिकेशन फील्ड में एक रिवोल्यूशन आ गई है। हम घर पर बैठकर और लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ करते हुए पूरी दुनिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन आज इस पैंडेमिक टाइम में भी हम घर बैठे एजुकेशन भी ईजिली ले पा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we have discussed about the various modes of transport and communication. I have also told you about the importance of these in the economic development of a nation or a place. Thank you. Stay blessed and stay happy.